طلبہ یونین آج اس ملک میں ہر جگہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اخباروں نے ہیڈ لائنز لگائی ہوئی ہیں کہ جی مارچز ہو رہے ہیں. تو آج میرے ساتھ مجاہد خٹک صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا طلبہ یونین ہونی چاہیے. یونین یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں یہ سیاست کرتے ہیں، وہاں پہ اپنا باقاعدہ منشور دیتے ہیں، تو یہ الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے. لیکن اس کی زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے وہ وہیں کے مسائل تک ہوتا ہے کہ طالب علموں کے وہاں جو مسائل ہیں تاکہ ایڈمنسٹریشن کو زیادہ وہ بے قابو نہ ہو جائے، اور اسے اکاؤنٹیبل بنانے کا اس کا مقصد ہوتا ہے. تو ان سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں مجاہد صاحب، آپ بتائیے گا کہ کیا یہ جو بحث ہو رہی ہے آپ اس پہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ کیا ہونے طلبہ یونین بحال تو ہو چکی ہیں، آفیشلی تو گیلانی صاحب نے بحال کر دی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے؟ انہیں ہونا چاہیے. طلبہ یونین کا یہ جو بحث چل رہی ہے نا آج کل، طلبہ یونین تو ایک صرف ایک طرح سے فساڈ ہے سمجھنے سامنے، پیچھے کچھ اور مجھے اس کے مقاصد نظر آ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں مختلف ممالک میں، ہانگ کانگ ہے، مصر اس میں، عراق میں ہو گیا، اس سے پہلے عرب سپرنگ آئی تھی، تمام میں طلبہ استعمال ہوئے اور ایسے ہی خوش کن نعروں کی صورت میں انہیں استعمال کیا گیا ہے. مجھے تو یہ ایک کوشش لگتی ہے کہ طلبہ کو ابھارا جائے یونینز کے تھرو، یونیورسٹیز کی ان کے جینون ظاہر شکایات ہیں، مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب ریسنٹ جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ طلبہ کو عموماً استعمال ہی کیا جاتا ہے. مطلب جیسے عرب سپرنگ میں ہوا گیا، وہ سپرنگ ایسے نہیں تھی، باقاعدہ وہ کہیں سے پلان کی گئی تھی، وہ تو صرف فارڈر کی طرح استعمال ہوتے ہیں، تو مجھے خطرہ ہے وہ استعمال نہ ہو جائیں. باقی جہاں تک طلبہ یونین کا تعلق ہے تو طلبہ یونین اصل میں حکومتی ناکامی کا ایک اعتراف ہوتا ہے. تعلیمی اداروں میں جو بھی مسائل ہیں وہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس کو انہیں حل کرے. وہ ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کو طلبہ پورا کرتے ہیں اور پھر اس سے جو مسائل جنم لیتے ہیں اس پہ پھر ڈسکشن ہو سکتی ہے. ہم نے تو دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے کہ کیا میں کچھ وہی ہوتا آپ ہے. سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو دیکھا وہ تو یہ تھا کہ یا سنا وہ تو منشیات کے اڈے ہیں، اسلحے کے اڈے ہیں، تو وہ کون سی مطلب ایسی کون سی خوشنما چیز ہے کہ وہ جو پیش کرنا چاہتے ہیں، کیا مسائل حل کیا ہوتے ہیں؟ حل نہیں ہوتے، مسائل بڑھتے ہیں. حل صرف ان کے ہوتے ہیں جو طلبہ کی جو کسی تنظیم کے ساتھ مستقل منسلک ہو جائے، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو باقی جو عام طالب علم ہیں ان کے لیے کوئی خاص مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی سوسائٹی میں اگر ہماری سوسائٹی یورپ جیسی ہوتی ہے، وہاں کی نارمز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، وہاں کا مزاج ہوتا ہے ہماری قوم کا، پھر طلبہ یونین بہت ضروری تھی. لیکن یہاں پر طلبہ یونین یا اس ٹائپ کے جو بھی ادارے آپ بنائیں گے وہ فلاپ ہوں گے. اس کا کوئی متبادل استن اور ڈھونڈنا چاہیے جس میں حکومت طلبہ مل کے کوئی فیصلے کر سکیں. اچھا، یہ بات تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جیسے ہم نے وہ بات کی کہ آج کے طلبہ کو تمام تعلیمی اداروں نے بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، ان کے فیسوں کے معاملے میں، بالکل مسائل ایسے کے معاملے میں وہ مرغی خانے کی طرح مرغیوں کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو یہی حکومتی ناکامی ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. حکومت ناکام ہو گئی ہے یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنے میں. ان کی اب یونیورسٹیز میں ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ وہاں پر ٹیچرز میرٹ پہ نہیں آتے، وہاں بھی ریفرنس چلتے ہیں، پرچیاں چلتی ہیں، سفارش چلتی ہے. تو طلبہ پھر دیکھتے ہیں جب ایک ٹیچر بہت اچھا پڑھا رہا ہے اور 4 ٹیچر کو کچھ بھی نہیں آتا تو ظاہر ہے ان میں غصہ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے والدین کو دیکھتے ہیں جو محنت مشقت مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ محنت مشقت کر کے ان کی فیسیں پوری کر رہے ہوتی ہیں. تو یہ ایک فطری بات ہے، ان میں غصہ بھی پیدا ہوتا ہے. اس غصے کو مثبت انداز میں چینلائز کیا جائے تو اچھی بات ہے. لیکن مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو کل ایک طرح سے احتجاج ہوا تھا تو اگر ون ٹائم ہے تو ٹھیک ہے، یا کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے باقاعدہ انہوں نے منظم کرنے کی کوشش کی تو اس کو ہائی جیک کر لیں گے مختلف نہیں، لوگ. اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے نا، اشرافیہ کے پاس کھلونا نہیں ہوتا. پہلے وہ ایک اور تنظیم تھی، اسے انہوں نے اتنا اوور ریٹڈ کیا کہ وہ لگتا تھا شاید پورا پاکستان ہے. وہ جب الیکشن لڑے تو صورتحال صاحب نے دیکھ لی. اس طرح اب بھی ان کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے الیکشن لڑے تھے، یہ جو 2018 کا الیکشن تھے، اور سب کو پتہ ہے انہوں نے کتنے ووٹ لیے. تو ابھی یہ چہرے بدل کر، نام بدل کر آ جانے سے کیا یہ اصل میں کیا ان لوگوں کو سیاسی سپیس نہیں ملتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کیوں آ جاتے ہیں؟ کیا استعمال ہونا یا وہ کیا فیکٹر کیا ہے اس کا؟
कौन से लोग, एक तालिब इल्म तो ज़ाहिर है वो तो जेन्युइन अपने मसाइल के लिए आते हैं, नहीं या फिर जो- जज्बा होता है, बिल्कुल, नज़रिया होता ये है जो तालिब इल्मों का असल में देखें ना आप, वो हर जगह बैठे हैं, वो मीडिया में भी बैठे हैं, उन्हें एक नज़र आ जाए दूर से, वो कहीं से धुआं उठता हुआ, वो कहते हैं वो पूरा शहर जल रहा है। बिल्कुल तो ये जो ऐसे लोग हैं, इनका क्या मकसद क्या होता है? ये अपने आप को अहमियत देते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद होते हैं। फ़र्ज़ करें किसी को ये अपनी अहमियत का शौक़ है, किसी का किसी के साथ ताल्लुक़ है, किसी मुल्की या गैर मुल्की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनका मकसद हुकूमत को हिलाना है या हुकूमत पे प्रेशर डालना है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो जैसे आपने पहले बात की कि वो जी मगरबी ममालिक में तो चूँकि हकीकी मानों में जमहूरियत है, हमारा तो मिजाज ही जमहूरी नहीं है, हाँ, तो हम इस मसले को हम कैसे देखें? अब देखें, जब आप डायरेक्टली इसकी मजम्मत करते हैं या मुखालफत करते हैं तो आपको कहा जाता है आप ये फ़लाँ स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तो जी आप तो ऐसे हैं, आपको तो ये चाहते हैं कि आपका दिमाग डब्बे में बंद रहे। तो इसका क्या हल क्या है? क्या मतलब स्टूडेंट्स को सतह पे कोई थोड़ी सी आज़ादी या वो सियासी सोच नहीं आनी चाहिए? स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए और अपनी आवाज़ कहते हुए फतवों से नहीं डरना चाहिए। फतवे तो लगेंगे लाजमी, वो तो नागुज़ीर है, ख़ुसूसन सोशल मीडिया के दौर में और भी लगेंगे, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि टीचर्स का बड़ा काम है कि वो तलबा को गाइड करें, असातिज़ा का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, उनका डायरेक्ट रब्ता होता है। वालदैन का वो है कि वो एहतियात करें, देखें, निगाह रखें, नज़र रखें कि हमारे बच्चे कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनके जेन्युइन मसाइल हल करें। जेन्युइन मसाइल हल कर देंगे तो क्या जवाब रहेगा? जब आप नीचे से वो सीढ़ी ख़त्म कर देंगे जिस पे चढ़ के कुछ क़ुव्वतें तलबा को या नौजवानों को इस्तेमाल करती हैं, तो उनके पास स्पेस नहीं रहेगी खेलने की। नहीं, वो चले यहाँ तक बात ठीक हो गई। अब ये इनका ताल्लुक ज़रा सियासी जमातों से, जैसे भुट्टो साहब के दौर में मतलब सारी तहरीक इन्होंने नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, तो क्या उस हवाले से इनका किरदार नहीं हो सकता सियासत में, मतलब मरकज़ी सियासत में? वहाँ से वो तो नज़रियाती सियासत थी उस वक्त दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम थी, आज तो नहीं है 2 ब्लॉक्स में तकसीम। तो आप नज़रियाती सियासत के हवाले से मैं ये कह रहा हूँ जो किरदार अदा किया था, जो अयूब खान के ख़िलाफ़ मतलब कि खुल के भुट्टो का साथ दिया, तो उसके नतीजे में अयूब खान की हुकूमत थी। तो ये जो अवामी इनकलाब है, तो क्या स्टूडेंट जैसे मुस्लिम लीग में किरदार अदा किया पाकिस्तान बनाने के, तो क्या इस तरह का किरदार नहीं हो सकते? हाँ, इस तरह के किरदार मस्बत हो सकते हैं, लेकिन हम तो डरे हुए हैं। 1977 में भी नौजवान बाहर निकला था, गोलियां भी खाई थी, सब कुछ हुआ था और उसका नतीजा ज़िया-उल-हक की सूरत में निकला था। और अयूब खान को हटाने में जो तहरीक चली थी उसमें भुट्टो साहब का किरदार शायद इतना नहीं था जितना याह्या खान का था, जो बैकग्राउंड में रहते हुए खुद हुकूमत पे काबिज़ होना चाहता था। तो उस वक्त भी मैं समझता हूँ तलबा इस्तेमाल हुए थे, और हो सकता है मैं पेसिमिस्टिक अंदाज में सोचता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि तलबा को इस्तेमाल किया जाता है और उनको ख़त्म करने के लिए, उनका ये रास्ता बंद करने के लिए उनके जेन्युइन जो मसाइल हैं वो हल करना होगा। ठीक है। अच्छा, इस सतह पर अब जो हम देखते हैं आजकल के तालीमी इदारों में यूनियंस बहाल नहीं है और इस तरह नहीं है, लेकिन वो हमने देखा है चूँकि मरकज़ी सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो उनका छोटे छोटे गिरोह से, सूबाई से किसी का ताल्लुक़ है, किसी ने कोई फ़िरक़ों के नाम पे बनाई हुई हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि क्या वो बड़ी जमातों के साथ रहे ताल्लुक़ हो नहीं, उनका? बड़ी जमातों के साथ होंगे तो फिर उनकी मैनिपुलेट करने की ताकत बढ़ जाएगी तलबा की, और जब नौजवान के हाथ में इख्तियार आता है तो वो फिर बेतहाशा इस्तेमाल करता है, फिर क्लाशनिकोव भी चलती हैं, फिर पिस्टल भी चलते हैं, फिर बहुत कुछ होता है। छोटी जमातें छोटे लेवल की वो इतनी पावरफुल नहीं होती पीछे, वो सपोर्ट भी नहीं कर सकती अपने लोगों को। यहाँ पर तो तलबा लीडरों को अपने मुखालफिन को सियासत में कत्ल कराने के लिए भी इस्तेमाल किया गया, और बाद में उन्हीं तालिब इल्मों को कत्ल करा दिया हुकूमत ने जब हुकूमत हासिल कर ली। तो ये छोटे छोटे इतना नुकसान नहीं देते जितना बड़ी जमातें। अब देखें पंजाब यूनिवर्सिटी में जमात इस्लामी एक निस्बतन बड़ी जमात है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं। हाँ, इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, उसमें मसाइल भी हैं, झगड़े भी हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं। कराची यूनिवर्सिटी तो जितने लोगों से बात की इस हवाले से, कोई हमें ऐसा हक में नहीं मिला कि तलबा यूनियन बहाल होनी चाहिए। वो कहते हैं जो वालदैन भेजते हैं, हम मिडिल क्लास के
गांव से भेजते हैं बच्चों को, वो कहते हैं जिस तालीमी इदारे में तंजीम का नाम हो तो वालिदैन वहाँ बच्चों को दाखिला नहीं देते। तो ये कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ तंजीमें होंगी तो वो अच्छी बातें करेंगी और वो स्टूडेंट के मसाइल हल होंगे। ये कोई मकबूल होना चाहता है ये बातें करके, तलबा में नौजवानों में मकबूलियत के लिए सियासी जमातें इसलिए कर रही हैं कि उनको फिर मैनिपुलेट करने की एक स्पेस मिलती रहे। अब वो अब देखें ना, एक सियासी जमात के सरबराह ट्वीटें तो कर रहे हैं जो उनकी ख़ानदानी यूनिवर्सिटी है उसमें, तो वो उधर या तो उन्होंने उधर वहाँ इजाज़त दे रखी हो, हाँ बिल्कुल है। या तो ज़ेबिस्ट में इजाज़त हो ना, तो उसके बाद फिर आप बात करें तो फिर तो बजाय अब वहाँ तो इजाज़त नहीं देते, खुद आप जाली वसीयत के सर पर लीडर बने हुए हैं और आप कहते हैं तलबा यूनियन। वैसे अच्छा चले, ये तो लीडरशिप की बात आ गई, अगर ये रास्ता भी बंद हो तलबा यूनियन वाला तो फिर लीडरशिप कहाँ से आएगी सियासत में? अब क्या ने आके तलबा यूनियन ख़त्म की, हाँ 1984 में तो ओके, उसके बाद देखें बेशुमार नए लीडर आए हैं, लीडरशिप आई है बहुत ज़्यादा, यूनियंस के बगैर भी आ गई है, बगैर तशद्दुद के बगैर। ये एक मिथ है कि हम यूनियन तलबा यूनियन के थ्रू लीडरशिप पैदा होती है, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसको नहीं मानता। खला जब होगा ऑटोमेटिकली क़यादत आएगी। नहीं, वो देखे ना, जैसे मैं बात ये कर रहा हूँ उस लीडरशिप की कि अभी अगर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक बंदा नाम है, जैसे कि कई नाम आए, तो सियासी जमातें मजबूर हो जाती हैं कि उन्हें एडजस्ट करें। अभी तो देखे सारे ख़ानदानी सियासत चल रही है ना, अभी तो अगर कोई लीडर इमर्ज होता है तो इसी वजह से होता है कि क्योंकि उसका बाप दादा जीत रहा। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब ये सेनेट में ऐसा है या कौमी असम्बली में, ये बल्दियात में भी हमने देखा यही है, मुशर्रफ दौर में भी देखा जब वो नाज़िम बनाए गए तो भी इन्हीं ख़ानदानों ने हाईजैक कर लिए। तो ये क्या किसी और को रास्ता फिर मिल सकता है ऐसे? लेकिन उसका हल तलबा यूनियन नहीं है, तलबा यूनियन इनकी मुनाफे नहीं तोड़ सकती, ये वक्त के साथ साथ टूटेंगी। लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, केपी से आए हैं, पंजाब से हैं, हमारे अपने शहर से, वो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से है, वो कई बार इलेक्शन जीत चुका है, आम आदमी है और मेहनती आदमी है, अब्दुल अलीम खान उसका नाम है। तो ये तलबा यूनियन को नौजवानों के मसाइल, तालिब इल्म के मसाइल हल करने के लिए तो होना चाहिए, लेकिन उससे आप ये तवक्को रखें कि वो लीडरशिप भी प्रोवाइड करे मुल्क को। मैं समझता हूँ ये लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ऑफ माइंड है। ये जो माजी की बात की जाती है, तो माजी में ठीक है, एक वक्त था वो जैसे आपने बात की कि असल में दुनिया में नजरियाती सियासत थी तो शायद बहस होती थी। बाकी हमने तो जमात इस्लामी की ही चंद देखा वो दम दरूद करते हैं, उसके अलावा तो बाकी जो पॉलिटिक्स होती है और जो कुछ नौजवान करते हैं ये इस नाम पे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे, वो तो कोई काबिल तारीफ़ नहीं है। तो आप के कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होनी चाहिए इसके नहीं, अगर होनी भी चाहिए तलबा यूनियन तो वो किसी और जाविये जिस तरह माजी में थी वो नहीं होनी चाहिए। ये हमें क्यों कल्चर है कि हर चीज़ हम मगरब से देख के कॉपी कर लेते हैं कि वहाँ बेनज़ीर ने ऑक्सफोर्ड में सियासत की तो इधर भी ऐसे, इधर क्या डिबेट होती है, क्या बात होती है, और कल्चर क्या है, वो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। बिल्कुल सही है, यहाँ मैं नहीं समझता तलबा यूनियन। ठीक हो गया, चले हमने इस पर बात की, बहुत शुक्रिया।